کہا تو ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن ہو، ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے، ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے، اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں، اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں، تاکہ پاکستان کو کامیاب کرائیں اور ہماری عوام کو کامیاب کرائیں، غریبوں کا کوئی احساس کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا قرض ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا آنے والا ہمارے پاس کتنی قسطیں دینی ہے قرضوں کی، تو ہر چیز کو پہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں۔ ہاں ضرور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے الیکشن میں ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیولوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں۔ اس دعا سے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے بہتر ہوگا، جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کھپے۔ زرداری صاحب، یہ جو پی ڈی ایم 2 ماڈل آ رہا ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کے بحرانوں سے گزر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ کوئی ترجیح ہم سب کے لیے نہیں اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر باہمی تعاون سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا تھا، اب بھی ساتھ دیں گے، اور ہم تو انتخاب سے پہلے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ اپنا وعدہ پیشگی پورا کیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سب مل کر اگر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر پاکستان اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے، تو ہم اس سال کے اختتام تک پاکستان کو بہتر صورتحال کا ہم سب پاکستان کو ایک بہتر صورتحال کی طرف لے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو بیٹھک ہوئی تھی، اس کا اصل میں مقصد یہی تھا کہ ہم سارے جیسے پہلے اکٹھے تھے تو پھر سے اکٹھے ہو کے پاکستان کے نظام کو سنبھالیں، پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کریں۔ تو ہمارے جو صدر ہیں خالد مکسی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ آ نہیں سکے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جائیں آج اس میٹنگ میں شرکت کریں۔ ہماری پارٹی جیسے پہلے میاں صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے تعاون کے لیے، جس سے بلوچستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری آ سکے، ہم میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چودھری شجاعت صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج انہوں نے ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان اس وقت نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے، غریب کے حالات بہت خراب ہیں، اور اس کے اوپر جو بوجھ ہے مہنگائی کا، اس میں وہ بری طرح پسا ہوا ہے۔ اور اب الیکشن کے بعد جب آپ کیمپین ختم کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر مشکلیں کتنی ہیں۔ اس کے لیے اس وقت اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا، سب کو باہر نکلنا پڑے گا، اور ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو صرف اور صرف ملک کی خاطر ہوں، ملک کی عوام کی خاطر ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی حکومت، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہوگی، وہ اس میں سے احسن طریقے سے جو ہے وہ ان فیصلوں کو کر پائے گی۔ اور میں پاکستان کے لیے
मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जी गल करो जॉय साहब करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दाई साहब ने जो फरमाया है कि बाद इस तरह की बात में इशारा कर रहे हैं, हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे हट गया है। हट गया मतलब ये है नंबर 1 पे हमें इकनॉमिक एजेंडा जो है ना उसको नंबर 1 पे रखना चाहिए। कोई एक ऐसा सब कामयाब हो गए तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकनॉमिक एजेंडा जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ। इकनॉमिक एजेंडा जो है ना वो हमें सबसे पहले यानी जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना वो इस टाइम नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी। नंबर 1 होना चाहिए। बाकी मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्याल बता दूँ। बस यही कह रहे हैं जी, बाकी मियाँ साहब के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मदऊ किया और जिस तरह इनकी रवायात हैं, इनकी बड़ी शानदार ये मेज़बान ये हैं, हमेशा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो मुल्क के जो सियासी ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कौम को बता सकें कि इस वक्त अभी जो इलेक्शन हमने लड़े, और यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लिमान अब मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़ सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है। उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात ख़ुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। IMF का जो मुआहिदा जो हुआ था उसने पाकिस्तान को दोबारा उसको एक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी और अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, पाकिस्तान में जो एक हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा एक अहम एजेंडा है। उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी, हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फ़ैसला करवाया। मैं और मेरे कायद आपके शुक्रगुजार हैं। जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वोट देने का आपने जो फ़ैसला किया है। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं सादक संजरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने आज ये पूरी कौम को दिखाया है कि ये पार्टीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की, जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब
उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे, क्योंकि अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे 90 मेंबर्स हैं या 100 जितने भी हैं वो ले आए हाउस में और वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे, तो जमहूर का तकाजा ये है, आइन का तकाजा ये है, पार्लिमानी रवायत का तकाजा ये है कि हम सब उस मेजॉरिटी को कबूल करेंगे। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज जो मेजॉरिटी, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और केपी के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको मियां साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफा आपके साथ नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं? दूसरी बात कि जो जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को किरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये इस 16 माह की उस कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी उस बात की। मौलाना फजल रहमान का आपने सवाल किया और मेरी आपसे गुजारिश है बड़े अदब से कि आप सवाल सदर साहब भी करना चाहेंगे, मुझसे भी, और रिपीट ना करें, जो सवाल हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, वक्त भी बचेगा और ज़्यादा लोग। मौलाना फजल रहमान से मेरे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे रब्ता हुआ था मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। वो आज उनकी शूरा की उनकी मीटिंग है, जो ही ख़त्म होगी मैं उनसे मिलूंगा। शहबाज साहब, वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो गया है कि कौन वज़ीर आज़म होगा? जी, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया है, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार। एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। मैं बता इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ। काबीना में शामिल नहीं होंगे, ये फैसला आपको कबूल है या उनको मनाएंगे, राजी करेंगे? इसी में इजाफा ले लें साहब, बाकी जमातों ने क्या फैसला किया है कि वो इसी तरह करेंगे जैसा पीपल्स पार्टी ने किया? हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टीज भी कमेटीज बनाएंगी और वो कमेटी जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। शहबाज साहब ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर तो आपका हो गया, क्या फार्मूला तय पाया है? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सदर की सीट पर कौन आ रहा है? स्पीकर नेशनल असेंबली? ये बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। देखिए बात ये है, मेरी बात सुन लें, मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने कहा था मैं हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं और आज दोपहर को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। अपना
KPK के लिए, जिनके जो 2 मई को मुलविस है और दर्जनों मुकदमात हैं उनके ऊपर, क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं किसी नजर से नहीं देखता। अगर उन्होंने आज़ाद जो वहाँ पर मेजॉरिटी अगर उनको नामजद किया है तो उनका हक है, तो उसकी जो भी उनकी फैसला जो करते हैं हम उसका एहतराम करेंगे। ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब अगले सदर पाकिस्तान होंगे या नहीं, प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इत्तेहाद है ये सिर्फ वफाक की हद तक है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपकी जमात जो है वो दूसरे नंबर पर है, और इसके अलावा जरदारी साहब की जो जमात है वो पंजाब में भी सीटें रखती है, या ये इस वक्त हम वफाक की बात कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, उनका इस्तेकाक है, वो फैसला करेंगे। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी, वो मैंने अभी इसका ऐलान कर दिया, और बाकी सूबों के हवाले से जो जिस तरह जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी हवाले से उनको हक पहुंचेगा कि वहाँ पर वो अपने वज़ीर आला नॉमिनेट करें। जरदारी साहब ये बताइएगा, आपने PTI से भी बात करने की कि हम उनकी मुफाहमत में साथ लेंगे, किस तरह कोई कमेटी बनी है, किस तरह राब्ता होगा, कोई उसका तरीकाकार भी तो तय पाया होगा आपस में? कह रहे हैं ऐसी रास्ता होगा जैसे आज हुआ। अगर नहीं होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता। तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। मैं आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जरदारी ने बात की, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए इस कौम की फलाह के लिए, अपने 25 करोड़ आवाम की तरक्की के लिए, उनकी जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसके लिए हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों और इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें ख़त्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी ज़ात को मुल्की मफाद की खातर कुर्बान करें। भाई बात सुन लें, प्लीज़ बात सुन लें। अना का मसला ख़त्म करें और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पुकार कर ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अब बहुत हो गई, बहुत इन पुलों से पानी बह गया, और पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी हालात में घिरा हुआ है उसके लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने होंगे, और ये बामी मुशावरत और कंसेंसस के बगैर नहीं उठाए जा सकते। इसलिए जिस तरह आपने फरमाया, मैं उसकी न सिर्फ तायीद करता हूँ बल्कि 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा कि आएँ दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। सबको मिलकर हम सब की इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें। आएँ आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। आएँ आगे बढ़ें और जो गिले शिकवे कदूरतें और एक दूसरे की जो खिलाफ बातें हुई उसको ख़त्म करें। आएँ अपना बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करके शुरू शकर हो जाए इस कौम की खातिर, इस दुखी कौम की खातिर, पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए जो मुखालफीन है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको एक जनाटेदार उनको हम दिखाएं कि ये कौम आज इकट्ठी है और इकट्ठे होकर सफ़र कर रही है। और इसके लिए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. आपने पहले भी ऑन द फ्लोर जो है ये बात की थी, शहबाज साहब ऑन द फ्लोर आपने बात की थी कि बात बैठ के बात करें। क्या धरने की सियासत करने वाले और लोगों पर जो ये धरने देने वाले हैं, क्या उनको भी आपका ये मैसेज है जो अभी आपने दिया है? और दूसरा ये बताएं कि अगले सदर पाकिस्तान को
सदर पाकिस्तान का फैसला इन साथियों ने करना है और इंशाअल्लाह हम शाबाश से करेंगे। हमारी मेजॉरिटी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो धरने और लॉन्ग, बात सुनने प्लीज़, धरने और लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है, ये कर्ज़ों को कम करने का वक्त है, ये पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है, ये बेकारीपन के खात्मे का वक्त है, ये पाकिस्तान के जो सब्ज़ झंडा है, लाली झंडा, उसको ऊंचा करने का वक्त है। ये तकरीरों से नहीं होगा, मर्सियों से नहीं होगा, शेरों से नहीं होगा, अमल से होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम मिलकर वो अमली नमूना पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।